तब चुनाव प्रचार में राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर आए तो चुनाव प्रचार में वो लोग वादा दिया था वो इलेक्शन कैंपेन में वो कि बीजेपी सेंटर में बीजेपी सरकार आने से वो कार्बी आंगलोंग के लिए वो में वो सोचेंगे। लेकिन अभी वो सेंटर में कार्बी आंगलोंग सेंटर में बीजेपी सरकार था, स्टेट में भी और कार्बी आंगलोंग में भी, लेकिन वो सरकार आने के बाद वो लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद। पूरे देश में आज ये बहस छिड़ी है कि किस तरीके से जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनको बचाया जाए, जल जंगल और ज़मीन को बचाया जाए। ये माहौल ऐसा हो गया है कि अब सरकारें नहीं चाहती तो प्राइवेटाइजेशन की आंधी के अंदर हम पूरे एनवायरनमेंट को नष्ट कर देंगे। और जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लोग खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि हार्मोनी नॉट हेट, एम्प्लॉयमेंट नॉट कॉर्पोरेट लूट, सोशल जस्टिस नॉट प्राइवेटाइजेशन, सॉवरेनिटी नॉट सेल आउट ऑफ नेशनल असेट्स के ड्रीम्स हैं जो इनके, उसके लिए ये लोग आए हैं। आइए बात करते हैं। सर, वेयर आर यू कम फ्रॉम, योर नेम एंड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम? My name is Sumit Timung. We came from Karbi Anglong and I'm KSA General Secretary, Karbi Students Association General Secretary, along with RYA. We came here to participate the Youth Parliament Rally in Jantar Mantar, Delhi. You are came here to participate in the Youth Parliament Rally. But what are your demands, major demands? Our national demand is to justice on bringing jobs, not hate, and to stop privatization. And our local issue, the local context in Karbi Anglong is not different. In our Karbi Anglong, there is a serious problems of unemployment have been going on. Many unemployed youth have been facing serious issues in this critical juncture, and many unemployed youth have been migrated to other parts of the country, like Bangalore, Kerala, and Andhra Pradesh, and they have been suffering for migrating for so far away places. And there is no guarantee of safety and security. Why? Because they have not been provided a guaranteed security while they are on their work, and lots of problems they have been facing. So we have been raising these issues in our local council, and we have been demanding in the memorandum also in the state government or in the central government. You have a district council over there. You have a district council, no? Yes. But you demand autonomous council, autonomous state. See, we have a district council which was established in 1951 and 52. After that, in 1995, the memorandum came into force between central government, Assam government, and the so-called SDC, CPML, and KSA is also one of the signatory. In 1995, before 1995, there were only 17 departments in the council, district council. But after signing MOU, the more power have been implemented in the council, and after MOU was signed, it is called Karbi Anglong Autonomous Council. But it is more powerful than the district council, you are saying. District council have less power, but after the signing the agreement, you got more power. But now you demand more. Yeah. After signing MOU, more power have been brought to the council, Karbi Anglong Autonomous Council. We talk about MOU means we talk about 4 pillars. One is the power to make law, the power to execute, the power to legislate, the power to make financial budget, and the other is to control over the authority of law and order. So you want more power, you are saying? Yeah. ये लगातार जो डिमांड हो रही है कि हमको और पावर चाहिए, क्यों चाहिए आपको पावर?
क्योंकि अभी उधर पे जिस तरह से वहाँ पर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट चल रहे है, और जैसे कि इन्वायरमेंट का वो जो हार्म हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग के लिए ऑटोनोमस स्टेट हम लोग 37 ईयर्स हो गए डिमांड करते हुए। 37 ईयर्स से ऑटोनोमस स्टेट की बात कर रहे हैं आप लोग। किसी ने वादा किया आपको? हाँ, मतलब ऑटोनोमस स्टेट एक्चुअली आर्टिकल 244A में लिखा हुआ है कि कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ को देना, मतलब उसका प्रोविजन है, देने के लिए उसका प्रोविजन है। तो उसके लिए हम लोग वो डिमांड हम लोग मांग रहे हैं। आपका संविधान में है, वही मांग रहे हैं। यानी योर लीगल डिमांड है। या वो हम लोग का लीगल डिमांड है, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी तक क्या मिला है और क्या और चाहिए? सर ने जैसे बताया कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी कुछ और पावर्स मिली। देखिए, अभी तक वो पावर जो सर ने बोला है वो पावर दिया है, लेकिन वो पावर काफ़ी नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने, मतलब अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो लोग, मतलब जो हम बीजेपी का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग मतलब अभी कार्बी आंगलोंग को मतलब थोड़ा मतलब दबाव करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्बी आंगलोंग डिमा हासाओ को। ये लगातार बात उठती है कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्नैच करता है पावर, वो खींच लेता है, वो शक्ति कम करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे आप? तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं वो कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ और वेस्ट कार्बी आंगलोंग को फुल फ्लेजेड ऑटोनोमस स्टेट होना चाहिए, क्योंकि भारत संविधान में लिखा है आर्टिकल 244 वो सेपरेटली 3 जिले हैं मेजर, 3 जिले हैं, कार्बी आंगलोंग, डिमा हासाओ और वेस्ट कार्बी आंगलोंग, वो 3 जिले से वो ऑटोनोमस स्टेट डिमांड है अभी तक 37। कौन सी वो ट्राइब्स है वहाँ पर? मेजर ट्राइब्स कौन सा है? मेजर ट्राइब हम लोग कार्बी है, कुकी है, रेंगमा है, कुकी भी है, उधर नागा है, बहुत सारा ट्राइब्स है, बहुत सारा ट्राइब है। तो ऑटोनोमस स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिमांड अभी 37 ईयर्स चल रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्शन चुनाव में प्रचार में पहला वहाँ कार्बी लोकल ने वादा किया था। पहला मोदी सरकार लोग जो बीजेपी तब चुनाव प्रचार में राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर आए तो चुनाव प्रचार में वो लोग वादा दिया था वो इलेक्शन कैंपेन में, वो कि बीजेपी सेंटर में बीजेपी सरकार आने से वो कार्बी आंगलोंग के लिए आर्टिकल में वो सोचेंगे। लेकिन अभी वो सेंटर में कार्बी आंगलोंग सेंटर में बीजेपी सरकार था, स्टेट में भी और कार्बी आंगलोंग में भी, लेकिन वो सरकार आने के बाद वो लोग गया था, वो उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसका धोखा था ये बात है। इसलिए हम लोग अभी भी डिमांड चल रहा है, अभी भी वो हम लोग का मांग है। और हम लोग का वो रोजगार भी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो पहला चुनाव में 2014 में वो वादा किया था, युवाओं के लिए वो 2 साल से 2 करोड़ नौकरी देगा बोले के लिए वो वादा किया है। अभी उसका वादा अभी 9 साल हो गया है, उसका वो 2 करोड़ भी नौकरी नहीं है। हुआ तेरा वादा? ये जो वादे की बात होती है कि मतलब वादा लेके तोड़ देते हैं, जुमले की बात करते हैं, और प्राइवेटाइजेशन के थ्रू नौकरी आप लोग नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब ऑटोनोमस स्टेट बन जाएगा तो क्या क्या आपका वो बेनिफिट हो जाएगा? फुल फ्लेजेड ऑटोनोमस स्टेट होने से, क्योंकि यहाँ लोकल यूथ के लिए वो मतलब नौकरी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं हम लोग के, और वो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अलाउंस दे सकते हैं वो सरकार के लिए, सरकार की तरफ से सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं, और कुछ इस तरह के प्रोग्राम किए जा सकते हैं जिससे जंगल भी बचे, ज़मीन भी बचे, और आपकी जगह भी बचे, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी हो। ऐसा ही कुछ है। डू यू थिंक दैट आफ्टर द ऑटोनोमस स्टेट यू विल सेव योर लैंड? After implementing of autonomous state, we will be able to save our territorial integrity, and we will be able culture, to as well save our culture, language, and tradition. And after implementing Article 244A, more power will come up, and after implementing Article 244A, there will be a sustainable development, and there will be a bright for the youth future. ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि जब आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जैसा कि संविधान में प्रावधान था कि इस जो 3 जिले थे इनको ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, तो वो मांग अभी तक पूरी हुई नहीं है। जो वादा किया हुआ है, 37 साल हो गए मांग डिमांड करते हुए, लेकिन अभी भी ये लोग उस पर पूरी तरीके से अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका सपना पूरा होगा, कब इनको ज़्यादा पावर मिलेगी, जिससे जल, जंगल, ज़मीन और अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, अपने कानून बना पाएंगे और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद, जय भारत।